तो I mean this is what you are going to call it as a configure devices and proper apply addresses. Now see, I mean you people are familiar with कि हमारे पास network address क्या है, you people are familiar with हमारे पास host address क्या है. तो if you can look upon this particular diagram, you have a PC1 and you have a PC2, right? PC1 के अंदर हमारे पास जो है एक IP address given है, that is called as 192.168.1.10, right? और PC2 को आपके पास एक IP address given है 192.168.3.10. So this means that these are the two different networks. ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना हमें, क्योंकि हमें पता है कि क्लास C के अंदर we do have all the three octets are I mean designated for the host portion and sorry network portion, and the last octet is being designated for the host portion. So definitely these are the two different networks. Switch 1 जो है it has 192.168.1.0 the network है उसका, और R1 जो है it is being connected with the switch 1 or you may call it as a network 192.168.1.0. In the same way, your R1 is directly connected with 192.168.2.0 network, and your R2 is being connected with 192.168.3.0/24. अब देखें /24 ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. I already discussed with you guys कि what I mean by /24 and all these things. ठीक है, तो I don't need to repeat it these things again and again. So what I assume that you people know these concepts. अब आप आ जाएं कि देखें, because until and unless you are not familiar with the diagram and IP address are being assigned, so we may not be proceed further, because until and unless your concepts are not clear regarding this, तो हम आगे नहीं चल सकते. ठीक है, अब अगर आप आगे देखें तो what we have IP address that has been assigned to a fast Ethernet interface is 192.168.1.1, right? This IP address has been assigned to this particular interface of a router. In the same way, आपका जो राउटर का सीरियल इंटरफेस है that is 0x0, that is a DCE data communication equipment and DTE data terminal equipment. Can anybody tell me what is the difference between DCE and DTE? Do anybody remember? सर DCE में सर क्लॉक रेट सेट होता है. Exactly, good. I mean at जो भी एंड आपका DCE होगा उसमें आपका क्लॉक रेट सेट होगा, क्लॉक रेट, राइट? और जो DTE होगा दैट इज विदाउट क्लॉक रेट. तो अल्टीमेटली यहाँ पे DCE लिखा हुआ है तो इट मीन्स दैट आपका जो क्लॉक रेट है वो आपका इस एंगल के ऊपर या इस साइड के ऊपर सेट है. ठीक है जी, तो इसकी IP आपके पास क्या है 192.168.2.1, राइट? This is an IP address of this particular interface, and 192.168.2.2 is an IP address of serial interface of router 2. In the same way, you have a fast Ethernet interface 192.168.3.1 that is being assigned to a fast Ethernet interface of a router 2, right? So this is how your PC2 and PC1 are being connected and how the things are going to be assigned to a particular device. I mean how the IP addresses are being assigned to a particular device or something like that. ठीक है जी, अब आप आ जाएं नीचे बेसिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स. अब ये कुछ कमांड्स हैं जो आपने डिफरेंट आई मीन टू से दैट मोड्स पे देनी है. अब आप देखें नेम द राउटर. आई मीन लेट्स सपोज इफ यू वांट टू गिव द नेम टू अ राउटर यू हैव टू गो इनसाइड अ कमांड लाइन इंटरफेस. अभी देखें आपने यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट के हाउ टू गो इनसाइड द राउटर और हाउ टू यू जस्ट बी नोइंग दैट कि आपके सामने होस्ट नेम कैसे सेट होगा. यू मस्ट बी नोइंग दैट, यू मस्ट बी इन द कॉन्फ़िगरेशन मोड, क्योंकि राउटर config लिखा हुआ आएगा और हैश साइन आएगी. तो दिस मींस दैट ओवर देयर यू हैव टू राइट होस्ट नेम स्पेस द नेम ऑफ द राउटर. नाउ लेट्स सपोज होस्ट नेम स्पेस यू वांट टू राइट हियर इनायत. अगर आप होस्ट नेम इनायत कर देते हैं तो ये राउटर का जो नेम है दैट वुड बी ट्रांसफर आई मीन चेंज टू द इनायत. अब इसमें लेट्स सपोज आप म्यूट देना चाहते हैं MUET, तो आप होस्ट नेम स्पेस म्यूट करेंगे तो योर राउटर वुड बी चेंज विथ म्यूट, राइट? So this is how you are going to change the name of a router. Now how you are going to set the password? Again in the configuration mode you have to write enable is a command, enable secret is a command, and then you have a password. You have to give the password, right? Whatsoever the password you want to give. Then
enable secret is a command and password that you want to give. Then you have to go in a line console mode. line console 0, आप जैसी line console is again a command, आप जैसे ही आप जाएंगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाएंगे, ठीक है। और वहां पे जाके यू हैव टू गिव पासवर्ड इज अ कमांड and again the second password is actually the password that you want to give. अब let's suppose password 1234 आप देंगे तो that particular password would be enabled over this particular mode, ठीक है जी। फिर आप करेंगे login router config line and then you have to write login and then you have to write line VTY 0 to 4. I mean this is how you are going to enable your password over a particular virtual terminal lines of 0 to 4, ठीक है। ये 5 लाइंस होती हैं, आपके पास वर्चुअल टर्मिनल्स होते हैं जिनके ऊपर आपको पासवर्ड सेट करने होते हैं। लाइन VTY 0 to 4 का मतलब ये है कि देयर इज अ लाइन वर्चुअल टर्मिनल्स from 0 to 4 means there are 5 lines virtual terminals on which your password has been configured. So you don't have to bother about all these commands. You just have to know that कि जी अगर हमने राउटर पे पासवर्ड सेट करना है तो हमारे पास कौन सा मोड होना चाहिए और उसके ऊपर कौन सी कमांड यूज होनी है। You don't need to अब ये सारी चीजें I mean if you would be getting a chance to do a practical, तो प्रैक्टिकल के अंदर आप पैकेट ट्रेसर के अंदर ये चीजें कर रहे होंगे, ठीक है। Then but right now you must be knowing that कि ये इस तरह से होती हैं, ठीक है जी। Then you have the configure in interface, configuring in an interface. अगर let's suppose आपने इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है तो you have to set a particular password. I mean I'm on the second column ना, ये जो आपने configuring an interface के ऊपर है। You have router config line password और space password आपने देना है। Then you have to log in. Then you have an interface type number, interface type 0 1 2 3 whatsoever you want to give, आपने वो देना है and then you would be there on that particular interface and then you have to set an IP address to that particular computer, oh sorry that particular interface. आपने let's suppose serial interface के ऊपर आपने एक IP सेट करनी है तो आपने क्या करना है IP address और उसका IP address बताना है आपने। IP address is a command, एड्रेस इज एन एड्रेस ऑफ 192.168.10.1 और मास्क आपके पास क्या होगा उस पर्टिकुलर आईडी का आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क लाइक 255.255.255.0। आप जैसे ही उसको करेंगे एंड देन यू वुड बी सेइंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ राउटर तो आपको वो आईपी एड्रेस आपके पास सेट हो जाएगी एंड देन यू हैव टू राइट अ कमांड नो शटडाउन। आप जैसे ही नो शटडाउन कमांड करेंगे तो आपका जो इंटरफेस है दैट वुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम डाउन टू अप और वो आईपी एड्रेस आपकी कॉन्फ़िगर हो जाएगी उस पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर लाइक ओवर हियर। आप देखें व्हाट यू थिंक 192.168.1.1 ये कैसे कॉन्फ़िगर हुई होगी। आई मीन दैट हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड बाय दिस वे। आप उसके इंटरफेस में गए होंगे, उसके इंटरफेस में जाके वहां पे जाके आप उस पर्टिकुलर इंटरफेस में जाके आपने आईपी एड्रेस की कमांड लिखी होगी और देन यू हैव रिटन 192.168.1.1 और देन आपने उसका मास्क लिखा होगा। देन यू हैव गिवन द नो शटडाउन कमांड। जैसे ही आपने नो शट कमांड की होगी तो आपका जो इंटरफेस है वो कॉन्फ़िगर हो गया होगा विथ एन आईपी एड्रेस 192.168.1.1। नाउ आई मीन दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर your different interfaces. I mean this is the procedure through which you are going to configure, ठीक है। then you have a configuring a message in a day banner. आपको कोई कहा जाता है कि जी आपने अपने राउटर पे बैनर लगाना है तो you have to see that banner MOTD हैश और हैश के दरमियान आपने वो मैसेज दे देना। लेट्स सपोज जैसे आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम टाइप नहीं करते कि जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है इन अ जावा योर फर्स्ट प्रोग्राम इज हेलो वर्ल्ड। सो इन द सेम वे आप बैनर MOTD इज अ कमांड और उसमें आप हैश दो हैशेस के दरमियान जो मैसेज लिखेंगे यू मे राइट हियर वेलकम टू मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो जैसे ही राउटर ऑन होगा तो आपके पास वो बैनर जो है दैट वुड बी डिस्प्लेड onto the screen of the router or you may write here you are being watched. I mean you have to give you have to tell your user that you have been all the passwords are secrets and all the information is being encrypted and if you want to do any mischievous thing definitely you would be penalized or something like that, right? So this is such type of messages that you want to display at the very early stage of as the router starts
तो वो सारी चीजें वहां पे डिस्प्ले हो रही होंगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सेट द बैनर सेविंग चेंजेस टू अ राउटर। आई मीन अब देखें ये बेसिक चीजें आपको बता रहा है वो, वेरी बेसिक चीजें। अब अगर आपने किसी चीज को सेव करना है, आई मीन यू वांट टू सेव, आपको मैंने दो चीजें बताई थी, वन वाज रैम, अनदर वन वाज एनवी रैम। जो चीज रैम पे होगी, एज सुन एज योर राउटर इज गोइंग टू बी वैनिश, आई मीन रीबूट, आपकी वो सारी की सारी चीजें आपने लेट सपोज पूरा दिन लगा के कॉन्फ़िगरेशन की, आई मीन आप सुबह से बैठे हैं शाम तक आप डिफरेंट इंटरफेसेस को डिफरेंट पासवर्ड्स लगा रहे हैं, आई मीन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस ट्रूली स्पीकिंग। जिसने ये प्रैक्टिकल किया होगा ना, आई मीन प्रैक्टिकली आपने परफॉर्म किया होगा, तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। लेट सपोज यू हैव 100 राउटर्स और आप हर एक राउटर के इंटरफेस पे जाएंगे, उसके ऊपर बैनर सेट करेंगे, उसके ऊपर पासवर्ड सेट करेंगे, एंड देन यू हैव टू आई मीन कॉन्फ़िगर एन आईपी एड्रेस टू अ सीरियल इंटरफेस, टू अ फास्ट ईथर इंटरफेस। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। इसीलिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की सैलरीज इतनी होती हैं, बिकॉज दे आर वेरी हाईली पेड पर्सन्स एंड अल्टीमेटली दे आर रिक्वायरमेंट आपके पास एक ही होती है, एक या दो होते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट दे डू नीड अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड दोज हु हैव सर्टिफिकेशंस लाइक CCNA और CCNP। द थिंग इज व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट कि you have done all these configuration for the whole day from morning to the evening, आपने 100 routers के ऊपर ये सारी configurations की, but you are forgotten to save those particular configurations और आपकी लाइट चली गई, like in Pakistan जैसे ही लाइट गई वो सारी की सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। I mean when the computer reboots, when the router reboots, all the information would be vanished away. So for that reason you have to copy you are running config to a startup config। अब ये दो फाइलें होती हैं, रनिंग कॉन्फ़िग कहाँ पे पड़ी होती है, जो आपकी रैम के अंदर होती है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग कहाँ पे होती है, आपकी एनवी रैम में होती है। तो यू हैव टू कॉपी योर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इनटू अ स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन दैट इज बीइंग प्लेस्ड इनसाइड एन एनवी रैम। तो जैसे ही आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में कर देंगे, तो आपकी सारी की सारी जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं दे आर बीइंग सेव्ड ओवर अ पर्टिकुलर राउटर। ठीक है जी, इज दैट क्लियर। एग्जामिनिंग द आउटपुट ऑफ शो कमांड। अब देखें आपने चेक करना है कि जी शो रनिंग कॉन्फ़िग, आपको पता करना है कि जी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या है, तो यू हैव टू राइट शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड। अगर आपको आईपी राउट का पता करना है, यू हैव टू राइट शो आईपी राउट। अगर आपने आईपी इंटरफेस ब्रीफ देखना है कि आपके इंटरफेस के ऊपर कौन कौन सी आईपीज कॉन्फ़िगर्ड हैं, कौन कौन से इंटरफेसेस हैं, यू हैव टू राइट आईपी इंटरफेस ब्रीफ। then you have to find the कौन से इंटरफेसेस हैं, you can write simple and interfaces, और आप एंटर करेंगे तो आपको सारे के सारे राउटर के इंटरफेसेस का पता चल जाएगा कि फास्ट ईथरनेट इंटरफेस कितने हैं, सीरियल इंटरफेस कितने हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग written inside that particular router. So is that clear guys? Yes, Is sir. that clear? Okay. Yes, sir. If you have any question or any question you have, you must have to ask. Okay, then you have verify basic router configurations, issue the show running configuration command, save the basic router configuration by issuing the copy running config to startup config। ये मैं बता चुका हूँ आपको पिछली स्लाइड के अंदर। additional commands that will enable you to further verify router configurations are show running config, display configuration, display configuration currently in RAM, show startup config, display configuration file inside NVRAM, show IP route, display routing table, show interfaces, display all interfaces configuration, show IP int brief, display abbreviated interfaces configuration information. Now these are the different commands. You must be knowing the names of the command and what is the responsibility of that command और वो क्या क्या करती हैं। जैसे हमारे पास होता है ना, जैसे ट्रेस राउट कमांड। अब ट्रेस राउट कमांड क्या करती है, मैंने आपको बताया था, वो पूरा राउट ट्रेस करती है। पिंग कमांड क्या करती है, इट्स अ कमांड लाइन इंटरफेस कमांड, राइट, इन अ विंडोज। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राउटर इंटरफेस, तो वहां पे ये कमांड्स होती हैं जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें बता रही होती है। ठीक है जी। तो राउटिंग टेबल स्ट्रक्चर, I would like to tell you the routing table structure. Routing table is stored in a RAM and contains the information about. अब we are talking about where the routing table stores in a RAM. We know that, and what information it contains. It contains directly connected networks. This occurs when a device is connected to another router interface. जब आपका network directly connected होगा router के साथ, that information is being listed inside a router or routing table. Remotely connected networks. This is a network that is not directly connected to a particular router. अब देखें,
आप अच्छा चलें आगे, डायग्राम के अंदर आपको पता चल जाएगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिमोटली कनेक्टेड नेटवर्क। तो रिमोटली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है? जो आपके पास 3 या 4 राउटर्स छोड़ के कनेक्टेड है किसी राउटर के साथ। दिस इज आल्सो कनेक्टेड एंड योर राउटर मस्ट बी नोइंग दैट इंफॉर्मेशन। I have told you, if I am not telling you, I am again telling you the same thing. आगे मैं डायग्राम में आपको ये ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क इंक्लूड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क एड्रेस एंड सबनेट मास्क and IP address of the next hop router. Now these are the three information that your routing table must contain and it is being present inside your RAM. Show IP route command is used to be your routing table. Show IP route command होती है जो आपके पास routing table को शो करती है इनसाइड है इंटरफेस। अब आ जाएं राउटिंग टेबल स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। Now you can see in this particular diagram adding a connected network to the routing table, router interface. Each router interface is a member of a different network activated using the no shutdown command. I mean हर एक राउटर का जो इंटरफेस है वो डिफरेंट नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है। दूसरा, आपने हर एक राउटर के इंटरफेस को अप कैसे करना है? बाय डिफॉल्ट दे आर डाउन, यू हैव टू राइट अ नो शट कमांड इन ऑर्डर टू अप दैट पर्टिकुलर इंटरफेस। आपने आईपी कॉन्फ़िगर कर दी इंटरफेस के ऊपर, अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट बी यूजिंग अ नो शट कमांड, आपकी आईपी, आपका जो इंटरफेस है वो अप नहीं होगा तो इट विल नॉट कम्युनिकेट, राइट। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि आपने आईपी कॉन्फ़िगर की, आपने सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर किया, नाउ यू हैव टू मेक अ नो शट कमांड। आपने नो शट लिखना है, जैसे ही आप नो शट लिखेंगे तो वो इंटरफेस अप हो जाएगा। इन ऑर्डर फॉर स्टैटिक एंड डायनामिक राउट्स टू एग्जिस्ट इन राउटिंग टेबल यू मस्ट हैव डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। अब दो चीजें होती हैं, एक आपके पास स्टैटिक राउट्स होते हैं और दूसरे आपके पास डायनामिक राउट्स होते हैं। स्टैटिक राउट्स आर बीइंग मैनेज्ड और बीइंग असाइंड बाय अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हिमसेल्फ। आई मीन जब आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हिमसेल्फ सेट करता है कि दिस राउट योर राउटर हैज टू सिलेक्ट to send your data from source to a destination, that type of routes are being called as your static routes. Dynamic routes are those routes which are being assigned by the dynamic routing protocols like RIP, IGRP, EIGRP. जब आप routing protocols configure कर देते हैं तो फिर आपकी static routing नहीं रहती, फिर वो routing protocols जो होते हैं they have to decide which path they need to take to send your data from source to destination. This is what the difference between your static and the dynamic routes, right? So in this particular diagram what we have, ये आपके पास R1 आपको नजर आ रहा है, R2 नजर आ रहा है। R1 का एक इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 0x0, सीरियल इंटरफेस है 0x0x0। R2 का एक सीरियल 0x0 इंटरफेस है और R2 का फास्ट ईथरनेट 0x0 इंटरफेस है। इसका जो S1 स्विच 1 का जो नेटवर्क है दैट इज 192.168.1.0। राउटर का जो इंटरफेस नेटवर्क है 192.168.2.0 और ये तीसरा नेटवर्क है उसके जो इंटरफेस है 192.168.3.0। नाउ दीज आर द थ्री नेटवर्क्स व्हिच आर बीइंग कनेक्टेड विद ईच अदर बाय यूजिंग टू राउटर्स R1 एंड R2, ठीक है जी। अब इसमें जैसे ही हमने शो आईपी राउट लिखा R1 के ऊपर, आई मीन यू विल गो इनसाइड द कमांड लाइन इंटरफेस ऑफ राउटर 1 और वहां पे जाके आपने शो आईपी राउट लिखा। जैसे ही शो आईपी राउट लिखा तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी एंड देन यू हैव द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट्स। C stands for connected, second C stands for connected and third S is being showing the static route। मतलब इस राउटर के ऊपर जो आपके पास राउट कॉन्फ़िगर किया हुआ है दैट इज एन स्टैटिक राउट। नाउ व्हाट द स्टैटिक राउट इज 192.168.3.0। अब बताना ये चाह रहा है कि जी अगर आपने 192.168.3.0 पे पहुंचना है, दैट इज अवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, वी नो दैट। व्हाट इज द डेस्टिनेशन? ये PC1 है, PC1 ने अपना डेटा किस नेटवर्क पे भेजना है? 192.168.3.0। तो इस डेटा को इस डेटा तक भेजने के लिए आपके पास जो दूसरा ये नेटवर्क कनेक्टेड है डायरेक्टली यूजिंग 192.168.2.2। Now, where is 192.168.2.2? Definitely, that would be somewhere over here because 192.168.2 आपका नेटवर्क है, this is a network और उसके अंदर कोई होस्ट होगा .2 के नाम से, definitely that would be this is .2, this is a .2। I mean ये जो नेटवर्क है that is directly being connected by using this particular
ID. So this is how you are going to show that how your फाइनल नेटवर्क इज बीइंग कनेक्टेड बाय यूजिंग अ स्टैटिक राउट. अब यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ इसको स्टैटिकली. आई मीन वी आर एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग दैट 192.168.3.0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड बाय यूजिंग router that is called as 192.168.2.2. अब जो भी डेटा आएगा that has to route through this particular network, यहाँ से होता हुआ then आपके पास इस particular destination तक पहुंचेगा. But in the case of dynamic routing, in a dynamic routing you cannot mention such type of IP addresses or something like that. In dynamic routing the protocols are running and they have to decide which path is the best path, and that path would be taken to reach at a particular destination. That is how your dynamic routing is being implemented. Sir? Yes. अगर सर स्टैटिक राउट में हम एक ऐसी आईपी दे दें जो पहले से ही गिवन हो, तो फिर वो एरर शो करेगा या कुछ प्रॉब्लम शो करेगा, या पहले से ही आईपी एड्रेस गिवन है? मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, मतलब अगेन कैन यू रिपीट इट? सर जैसे हमने आईपी एड्रेस दे दिया एक को, मतलब कि इसमें से इमेज है स्विच 1 को हमने एक आईपी दे दी, वही वैसी सेम टू सेम आईपी अगर हम पीसी 1 को भी दे दें तो सर वहाँ पे एरर शो करेगा या नहीं? देखिए पहली बात तो ये है कि S1 को आप आईपी दे ही नहीं सकते. S1 इज अ स्विच, यू कैन नॉट असाइन एन आईपी. बट योर आंसर हैं एग्जांपल दे रहे थे सर हम जैसे. हाँ तो नहीं, देखिए ना, आईपी अगर आपका सेम नेटवर्क है उसके अंदर दो सेम आईपीज नहीं हो सकती. दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अगर आपका ये वाला जो 1.0 नेटवर्क है इसके अंदर अगर आप असाइन कर दें 192.168.1.1 दैट्स फाइन. अब अगर यहाँ पे इसी नेटवर्क के अंदर अगर आप 192.168.1.1 अगेन किसी और चीज को असाइन करेंगे तो दैट इज अनएक्सेप्टेबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट. बट अगेन इफ यू हैव अनदर नेटवर्क और वहां पे 192.168.3.0 या 192.168.1.12 यहाँ पे कहीं असाइन करते हैं बिकॉज देयर इज सम अदर सबनेट आपने बनाया और यहाँ पे लेके आए आप उसको, तो यू कैन डू दैट. बट इनसाइड द सेम नेटवर्क यू कैन नॉट असाइन द सेम आईपी टू अ मल्टीपल डिवाइसेस. Okay, ठीक है. Yes sir, yes. Okay. Now routing table structure. Static routing table. Static routing routes in a routing table includes network address and subnet mask and IP address of a next hop router or an exit interface, denoted with the code S in the routing table. Routing table must contain directly connected networks used to connect remote networks before static or dynamic routing can be used. When to use static routes? When network only consists of a few routers, network is connected to internet only through an ISP, hub and spoke topology is used in a larger network. Now see, the question is कि एक तो स्टैटिक राउट आप कैसे शो करते हैं. आई हैव टोल्ड यू कि राउटिंग टेबल के अंदर वो कैसे शो हो रहे होते हैं. आपने नेटवर्क एड्रेस शो करना है, सबनेट मास्क शो करना है और आईपी एड्रेस शो करनी है, और नेक्स्ट हॉप राउटर की आपने बताना है कि एग्जिट इंटरफेस कौन सा है. सेकेंडली दे आर बीइंग डिनोटेड बाय यूजिंग अ एस इन अ राउटिंग टेबल, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टैटिक राउट है. ठीक है जी. तीसरी चीज ये, राउटिंग टेबल मस्ट कंटेन डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क यूज्ड टू कनेक्ट रिमोट नेटवर्क बिफोर स्टैटिक एंड डायनामिक राउटिंग कैन बी यूज्ड. आई मीन राउटिंग टेबल के अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी जाके आपके स्टैटिक राउट्स जो है वो कॉन्फ़िगर होते हैं. लेकिन हम स्टैटिक राउट कब कॉन्फ़िगर करते हैं? व्हेन यू हैव अ स्मॉलर नेटवर्क. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि स्टैटिक राउट्स अगर यहाँ पे आपके पास कोई छोटा सा नेटवर्क है दैट इज फाइन. बट इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन एंटरप्राइज लेवल नेटवर्क जहाँ पे बहुत से राउटर्स हैं, बहुत से स्विचेस हैं, बहुत सी डिवाइसेस हैं, तो you cannot use a static route. That is not I mean advisable to use in static routes over there. Now in this particular diagram you may see here static connected and static routes. You can see in this diagram you have R1. ये बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं जो मैंने आपको बताया था. S for static और S for static 192.168.3.0 is connected via 192.168.2.1. ठीक है, वही डायग्राम है जो पीछे वाली, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दी है. डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज्ड टू ऐड रिमोट नेटवर्क्स टू अ राउटिंग टेबल. ऐड यूज्ड टू डिस्कवर नेटवर्क आर यूज्ड टू डिस्कवर नेटवर्क्स आर यूज्ड टू अपडेट एंड मेंटेन राउटिंग टेबल्स. Automatic network discovery. Routers are able to discover new networks by sharing routing table information. देखें, dynamic routing table protocols का concept ये होता है in which you do not have to configure the static routes. आपको जाके हर एक राउटर के अंदर राउटर की जाके इंटरफेसेस या उनको कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता.
what you have to do, you have to enable a particular protocol inside a router कि आपने एक इंटरफेस पे जाके RIP को कॉन्फ़िगर कर दिया, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल को, ठीक है. नाउ RIP has to advertise certain sort of information to all the other connected routers and send the information and get the information from them. What I mean to say that कि let's suppose router 1, अब ये router 1 है ना, अगर आपने router 1 के ऊपर you have configured dynamic routing protocol that is RIP. I'm just going to give you an example of a RIP because routing information, a RIP is a routing information protocol, ठीक है, that is a dynamic routing protocol. Now what is going to be happen when that protocol is enabled? What he is going to do, he is going to broadcast a message to all the connected routers, which are the neighboring routers or the remote routers. उनके पास वो information जाएगी. I mean every router has to broadcast, and that information is being shared with each other, right? When that information would be reached to the router 2 would be sharing its all routing table with router 1, and router 1 is going to share its all information with the router 2. अब वो replicate कर लेंगे अपने आप को. Whatsoever the connected networks with R1 are, they are being advertised to R2, and whatsoever the networks that are being connected with R2 are being advertised to R1 by sharing the information. This is how your routing protocols are going to understand, or sorry, are going to learn regarding the networks. So this is what the specialty of the dynamic routing protocol, in which your network administrators have no any role. All the information, all the things are going to be managed by the routing protocols. So is that clear, guys? The difference between static and dynamic routing protocols. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So routing table structure, I mean maintaining routing tables. Dynamic routing protocols are used to share routing information with other routers and to maintain and up to date their routing tables. अब पिछली वाली जो diagram थी, that was showing you static routes. अब ये वाली जो diagram है, that is going to show you the dynamic routes. IP routing protocols, example of routing protocols include RIP, IGRP, EIGRP, OSPF. अब जो important information understand करने की है ना, वो ये है. आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं. राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, RIP इज अ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, IGRP इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल, EIGRP इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल, OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल. ठीक है जी. तो अब हमने क्या करना है, नॉट हमने, बट एक्चुअली योर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू कॉन्फ़िगर दैट प्रोटोकॉल over there. ठीक है जी. अब आप देखें the same network, but this is another fast Ethernet 0x1 network that is being directly connected to router 2. 192.168.4.0 का नेटवर्क है जो आपके पास R2 के साथ कनेक्टेड है. पिछली डायग्राम के अंदर जस्ट FA0x0 कनेक्टेड था. अब FA01 भी कनेक्टेड हो गया है. ये .3 का नेटवर्क था, ये .4 का सब नेटवर्क है. ठीक है. नाउ दे आर बीइंग कनेक्टेड. ठीक है. अब होगा क्या, if you can see, if you are going to do show IP route over an R1, आप जैसे ही R1 के ऊपर show IP route करेंगे तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन नजर आएगी. ये तो सारी डिस्क्रिप्शन है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी फुल नेम क्या है, ऑल दैट. द मेन इंफॉर्मेशन इज दिस वन. C is what? Connected. 192.168.1.0 is directly connected with fast Ethernet 0x0. Now see this one. ये जो आपका नेटवर्क है ये फास्ट ईथरनेट 0x0 से डायरेक्टली कनेक्टेड है. ठीक है. 192.168.2.0 ये कौन सा नेटवर्क है, दिस वन. ये आपका कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड है सीरियल 0x0 से. दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सीरियल 0x0. Then we are talking about 192.168.3.0. 192.168.3.0 एक नेटवर्क है which is connected via 192.168.2.2. अब नाउ ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. देखें ये वाला जो नेटवर्क है ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है R1 के साथ. R1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से हैं, .1.0 एंड 2.0, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड. ठीक है जी. लेकिन जो 3.0 है that is being connected via 192.168.2.2. 2.0 ये नेटवर्क है और उसका जो IP है इस इंटरफेस का that is 2.2. इस इंटरफेस के थ्रू आपका 3.0 स्टैटिकली कनेक्टेड है विथ R1. सही. S का मतलब क्या है, दिस इज स्टैटिक राउट. ठीक है जी.
अब आ जाएं .4.0 वाले नेटवर्क के ऊपर। 192.168.4.0 एक नेटवर्क है, दिस इज द फोर्थ वन नेटवर्क, दिस इज द नेटवर्क, एंड इट इज बीइंग कनेक्टेड वाया 192.168.2.2 इस नेटवर्क के थ्रू, और सीरियल इंटरफेस 0x0x0 के थ्रू ये कनेक्टेड है, एंड दिस इज योर डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है जी, इसके लिए आपको स्टैटिक पाथ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, दिस इज द डायनामिक, एंड बिकॉज ऑफ आर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हाट, दिस मींस दैट इस पर्टिकुलर राउटर के ऊपर कौन सी इस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल इनेबल्ड है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड एज रिप। RIP is enabled over this path, and this is how you are going to show that how the dynamic protocols are being enabled inside a network. So routing table principles, 3 principles regarding routing tables. First point is every router makes its decision alone based on the information it has in its routing table. ठीक है जी, पहला पॉइंट ये है कि हर राउटर जो है वो अपना डिसीजन खुद करता है based on the router information that it is routing table have. Second point is different routing table may contain different information. Different routing tables की आपके पास different information होती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है, routing table can tell how to get to a destination but now how to get back. तीसरा पॉइंट ये है कि राउटिंग टेबल ये तो बता सकता है कि आपने किस तरह से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, बट हाउ टू गेट बैक टू द ओरिजिनल राउटर, दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राउटिंग टेबल। ठीक है, अब राउटिंग टेबल R2 जो है वो ये बताएगा कि आपका डेटा यहाँ से R3 तक कैसे जाएगा, बट इट विल नॉट टेल कि हाउ इट विल कम बैक टू राउटर 2। दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राउटिंग टेबल।